Hello friends, I am Dr. Lalkrishna and now we'll be starting a new series for NEET and MBBS students. So we'll be discussing the basics of clinical medicine and surgery, which will be very helpful for final year exams especially and also for NEET or next. So before starting, let us try and understand that for any action we need to sharpen our axe. So we all have brains, but the ability to use our brains is different for all of us. So for same exam, someone might be taking 1 year, someone might be taking 2 years, someone might be taking 3 years and even more. And some might not be able to clear after many attempts. So it is very important that we understand and know how we can sharpen our axe, our focus, our intelligence, our memory, all these things. So what are the various ways which I have used? I would like to share to sharpen my axe before any action that has helped me to crack two competitive exams in first attempts. That was the undergraduate exam and the postgraduate exam. So what are these? First and foremost is having a good health, physical health. For that you can do exercise, be it jogging, be it aerobics or anything else. At least 15 to 30 minutes a day is important. Then comes spirituality and meditation, and in that you can read some good books or chant some mantra, or you can do meditation or even read self-help books if you are not a god believer, but still it helps. So sharpening our axe is very important. And lastly, having gratitude for whatever we have, for the memory, for the intelligence, for the knowledge we have received from our teachers, from our parents and God. So we'll just take a 30 minutes pause and pray that we are thankful for whatever we have received and we'll use it for the betterment of mankind. So to begin with, we have to understand that these exams, these competitive exams can be seen as difficulties for growth, but actually they are not obstacle but opportunity to grow. Because when we understand how to tackle them, we'll have ways and techniques to overcome problems in life which are going to come. This is just an exam. Life will throw many more exams at our face, that too surprise. So let's get prepared and let's get ready to face this. So all of us have cracked NEET UG or other entrance exams to have joined MBBS, and now before becoming or before clearing NEET PG we will become doctor. So it is very important that we understand that we have become a doctor after entering into MBBS. We will clear MBBS because it is not very difficult as compared to getting a postgraduate seat. So we have to understand that we have to accept our responsibility as a doctor before becoming a specialist after NEET PG exam. So we'll become specialist after NEET PG, but before that we are general physician and surgeon. So we have to understand and accept that responsibility. And even after specialist doctor we can give NEETSS and then become super specialist, but at present we are here in our doctor stage.
So for that we have to study, and also we can study other subjects which you like for growth. That can be as a hobby or necessity. That could be finance, management, or psychology. That adds on to your growth. But first and foremost, we have to understand that we are doctors. So coming to the next point, that we have to think like doctor. Whenever we see a problem, we have to think like doctor, and henceforth try to manage the case, treat the case. So we have to learn like a doctor. And what do we mean by learning like a doctor? That we have to understand and learn how to manage or treat a case or a patient. So that will help us to better justify our position as a doctor, our responsibility as a doctor. So what we have to think, that we have a problem, what drug we will give, or what advice we will give, what surgery we can advise, what investigation we can do to confirm the issue, or is there any issue with the comorbidity that needs to be addressed, or we have to find out whether there is some comorbidity. So समझना पड़ेगा कि डॉक्टर बन गए हैं तो ऐसे सोचना है, ऐसे सीखना है कि हम पेशेंट ट्रीट कर सकें, क्या सर्जरी लगेगी वो एडवाइस कर सकें, क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कंफर्म करने के लिए हमारा डायग्नोसिस वो समझ सकें, कोमॉर्बिडिटी पहचान सकें. ऐसे सोचना है और ऐसे पढ़ाई करना है. देन कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज हमारे पास इतने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक में जो मेडिसिनल ब्रांचेस है जिसमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, स्किन, सर्जिकल ब्रांचेस में सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी, ऑफ्थाल एंड ओबीजीवाई, एंड सम other branches which are different in understanding and also preparation point of view, like psychiatry, anesthesia, radio, FMT, PSM, and also the second year and first year subjects which I have not mentioned here. So the basic of these clinical subjects, the medicine group and the surgical group, is very similar, which we'll be discussing today, and it will help you to write any theory exam and understand clinical questions much better and able to crack them in a simpler way in a least amount of time. तो ये कंसेप्ट्स समझ के हम सबसे कम टाइम में चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं एंड क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हमेशा याद रखना है, जब हम पेशेंट देख रहे हैं तब भी और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब भी, पहले कॉमन चीज़ों के बारे में पहले सोचना है, पहले उनको रूल आउट करना है, उसके बाद रेयर की चीज़ों की तरफ जाना है. कॉमन हम अगर हैंडल कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो इसलिए कॉमन के बारे में पहले सोचना है, कॉमन को टैकल पहले करना है, बाद में रेयर के लिए जाना है. पहले कॉमन चीज़ें पढ़ लेंगे, कॉमन चीज़ें समझ लेंगे, कॉमन चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं वो समझ लेंगे, एंड देन विल गो टूवर्ड्स रेयर थिंग्स. सो हम सोचते हैं, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम क्या करेंगे जाके. लेकिन एक बार एक ओवर बिग पिक्चर तुमको मिल गया कि किसी भी बीमारी का क्या क्या कारण हो सकता है, तो तुम्हारा जो डर है वो कम हो जाएगा. तो इसी से स्टार्ट करेंगे. तो कोई भी बीमारी है, जनरली मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं विथ सम एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है कि किस वजह से बीमारी हो रही है, इटियोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है. तो सबसे पहला हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे, जो है ए फॉर एज. तो एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा बॉडी का मैकेनिज्म्स वीक होते जाता है, जंग लगते जाता है. फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर कोई ऑर्गन बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है तो वर्क नहीं कर पाता, लाइक प्रोस्टेट जो बढ़ जाता है एज के साथ, एंड एज के साथ वेसल्स स्टिफ हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो वो नैरो हो जाएंगी, तो वो डिसऑर्डर हाइपरटेंशन को
प्रोड्यूस करेंगी। मेनोपॉज हो सकता है एज के साथ क्योंकि हार्मोन्स बंद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट विल कम टू इन्फेक्शन। किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, इन्फेक्शन हम माइक्रो में डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, जिन्होंने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, वो लोग भी समझेंगे कि इन्फेक्शन 4 जो कारण हैं, आइदर बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस या फिर पैरासाइट, इन 4 कारणों के वजह से हो रहा है। इस वजह से कोई ना कोई इशू आएगा। इशू क्या आएगा हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन ये इटियोलॉजी हो सकता है। और इंडिया में सबसे कॉमन जो इशू है वो इन्फेक्शन है। तो हमको फर्स्ट हमेशा पेशेंट देखते टाइम एंड क्लिनिकल सिनेरियो में भी जैसा सिनेरियो दिया गया है उस हिसाब से इन्फेक्शन को हमेशा ऊपर रखने का सोचना है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन है खास करके अपनी कंट्री में, तो मैनेजमेंट के इस टाइम पे भी इन्फेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है। देन कंसिडरिंग एज वी कैन मूव अहेड। देन कम्स ट्रॉमा, कि पेशेंट को कुछ चोट लगा है क्या, चोट की वजह से आगे का तकलीफ शुरू हुआ है। चोट कैसा भी हो सकता है, ब्लंट हो सकता है जिसमें ब्लड नहीं आया हो, या फिर पेनिट्रेटिंग हो सकता है जिसमें ब्लड आया हो, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर घुस रहा हो जो पेनिट्रेटिंग इंजरी होगा, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग इंजरी। उसके अलावा ट्रॉमा को हम इससे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ड्रग्स या टॉक्सिन, उस वजह से भी जो इंजरी हो रही है बॉडी में, उस वजह से डिजीज हो रहा है। जैसे ड्रग्स, कोई ड्रग ज़्यादा ले ले रहा है तो उसको अक्यूट लिवर फेलियर हो जा रहा है, जैसे पीसीएम बहुत ज़्यादा ले लिया 15 ग्राम से ज़्यादा। या फिर टॉक्सिन जैसे स्मोक हो गया, टबैको, अल्कोहल, जिस वजह से लंग कैंसर या फिर सीओपीडी हो रहा है, अल्कोहल की वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज हो रहा है, तो इस वजह से बीमारियां हो रही हैं। एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देन कमिंग टू न्यूट्रिशन, तो इसमें आ रहा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जस्ट सिर्फ हमें ये नहीं कंसिडर करना है कि खाना नहीं मिल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। माल न्यूट्रिशन में किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट बॉडी में जो है उसकी कमी की वजह से, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन बढ़ जा रहा है, जैसे सॉल्ट बढ़ गया, हाइपरटेंशन, शुगर बढ़ गया, मैनेज नहीं हो पा रहा क्योंकि पेशेंट खाने पे ध्यान नहीं दे रहा, शुगर बढ़ गया, डायबिटीज। तो माल न्यूट्रिशन में दोनों आएगा, कम हो गया तो या फिर बढ़ गया तो इस वजह से कोई बीमारी हो सकती है। देन कमिंग टू ट्यूमर, जो कि बिनाइन या मेलिग्नेंट हो सकता है और इश्यूज क्रिएट कर सकता है ड्यू टू जो ऑर्गन में इन्वॉल्व है उस ऑर्गन का फंक्शन कम हो जाएगा, या फिर प्रेशर सिम्टम आसपास में दिखाएगा, या फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ये सब करके प्रॉब्लम दिखा सकता है। या फिर कोई सिस्ट जो कि एक ट्यूमर जैसा ही दिखता है लेकिन बिनाइन होता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन कमिंग टू जेनेटिक और कंजेनाइटल अनोमली, जो कि बाय बर्थ कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है शरीर में, सिकल सेल हो गया, थैलेसीमिया, या फिर कंजेनाइटल बाय बर्थ उसका कुछ ऑर्गन डिफेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल एनस ओपनिंग ही नहीं है, एनल ओपनिंग ही नहीं है, तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, तो कंजेनाइटल डिफेक्ट है। तो ये जेनेटिक एंड कंजेनाइटल। देन ऑटो इम्यून, कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, जो कि ग्रेव्स डिजीज में होता है, ठीक है, थायराइड का है, जिसमें हमारे शरीर के एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के सेल्स के अगेंस्ट वर्क करने लग जाते हैं और सिम्टम्स दिखाते हैं। तो ऑटो इम्यून एक कैटेगरी आएगा। डिटेल्स हम इसका पैथोमाइक्रो में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन मेडिसिन, सर्जरी एंड अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में देखेंगे। तो ये कॉमन लिस्ट है इटियोलॉजीज की। लास्ट में मिसलिनियस कुछ रेयर जो चीज़ें छूटी हुई हैं, अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो वी कैन ऐड इट अप देयर। बट हाँ, और लास्टली जो समझ में नहीं आता है वो इडियोपैथिक, वो भी एक एटियोलॉजी है, जब कुछ सब चीज़ रूल आउट हो जाए उसके बाद। तो ये कॉमन एटियोलॉजी है, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिजीजेज में, मैक्सिमम कंडीशंस में अप्लाई होंगी।
with some exceptions here and there, and we have to go from common towards rare. जैसे infection और trauma ये ज़्यादा common है, then comes malnutrition, then comes tumor, congenital genetics, congenital and autoimmune disorders. So ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऐसा ही रहेगा जनरली, तो इस ऑर्डर में हमको ध्यान रखना है। एज, इन्फेक्शन, ट्रॉमा को कंसिडर करते हैं, फिर माल न्यूट्रिशन, देन ट्यूमर, देन जेनेटिक एंड ऑटोइम्यून कंडीशन। सो थिंक कॉमन फर्स्ट एंड देन रेयर, थिंक मैनेज कॉमन फर्स्ट देन रेयर। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल फीचर। अब इन प्रॉब्लम्स जो हो गई हैं, ये जो एटियोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसके वजह से हमारे शरीर में गड़बड़ होगी डेफिनेटली, और उसके वजह से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे जिसको हम बोलेंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स एंड साइंस। ठीक है, तो सिम्टम्स हमको हिस्ट्री में पता चलेंगे जो हम देखेंगे, एंड साइंस हमको एग्जामिनेशन में पता चलेंगे। तो जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स हमको देखने मिलेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको सिस्टम के सिम्टम्स समझ में आएंगे। बट एक रफ पिक्चर अगर हमारे दिमाग में है कि हर सिस्टम के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कॉमन, तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बेटर पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे, जल्दी ग्रो कर पाएंगे एज अ डॉक्टर। एक बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी हमारे दिमाग में रहने से हम इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। सो स्टार्टिंग विथ अप, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, तो ब्रेन में दिक्कत है तो क्या क्या हो सकता है? हेडेक, वॉमिटिंग, है ना। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ गया तो हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। विजन में डिफिकल्टी आ सकता है, या फिर सेंसेशन का चेंजेस, या फिर मोटर जो पावर है उसका चेंजेस, हाथ पैर नहीं हिला पाना, पैरालिसिस, ये सारे साइन सिम्टम्स, या फिर सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, ये सारे साइन सिम्टम्स है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट के। देन कमिंग टू आईज, आईज में डिफेक्ट है तो विजुअल डिफिकल्टी, पुअर विजन, पेन इन आईज। पेन रैदर हर जगह पे कॉमन सिम्टम रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो डॉक्टर के पास पेशेंट को लाता है। सो आईज, डिफिकल्टी इन विजन, पुअर विजन, अनेबल टू सी फार विजन, नियर विजन, वाटरिंग फ्रॉम आईज, इचिंग इन आईज, ये सारे आईज के सिम्टम हो सकते हैं। ईयर में डिफिकल्टी इन हियरिंग, अबनॉर्मल साउंड्स, या फिर पेन, इचिंग, डिस्चार्ज। एक्चुअली एनी ओपनिंग से डिस्चार्ज के लिए ये सिम्टम मिल सकता है। आईज से भी वाटरी डिस्चार्ज या फिर पुरलेंट डिस्चार्ज आ सकता है, तो डिस्चार्ज कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। सो ईयर, देन नोज, नोज में ड्राइनेस, डिस्चार्ज और पेन, ये सब हो सकता है। थ्रोट में पेन, swallowing डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ये सारी बातें हो सकती है। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डिस्फेजिया हो सकता है, निगलने में दिक्कत, जो थ्रोट से कनेक्टेड रहेगा, इसोफेजियल। देन पेन इन एब्डोमेन, एनी एब्डोमिनल स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन स्टूल, एसिडिटी, ब्लोटिंग, नॉट एबल टू पास स्टूल, वॉमिटिंग, ये सारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। नॉट एबल टू पास फ्लेटस, गैस नहीं पास कर पाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। देन कमिंग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑन एक्सर्शन, ये साथ में हो सकता है विथ कार्डियक सिस्टम के, कंबाइन हो जाता है बहुत बार, तो ये सारी इसमें आएंगे। कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन, एंड चेस्ट पेन, ये सारी इश्यूज होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। कार्डियक में पैल्पिटेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एंड स्पेशली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विथ एक्सर्शन, ये कार्डियक सिम्टम्स के साइंस हैं। देन कमिंग टू
वैस्कुलर सिम्टम्स जो कार्डियक से स्टार्ट हो रहा है, इसमें चेस्ट पेन, अगेन हेडेक ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और वैस्कुलर एन्यूरिज्म और वैस्कुलर डिसेक्शन, या फिर जो पेरिफेरी वेसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कॉजिंग वैस्कुलर obstruction causing gangrenous changes, or pain like peripheral vascular disease, or swelling in the vessels like the varicose vein, or swelling in the limbs, that could be lymph abnormality or lymphedema. So this was about vascular symptom. Then coming to urinary system, urinary system will have increased frequency of urination, difficulty in passing urine, or burning micturition, painful micturition, pain in the flank or suprapubic region, that could be a possibility. These are symptoms for urinary tract. Then endocrine, it could be due to hypothyroidism or hyperthyroidism or diabetes, like weight gain, weight loss, excessive heat or excessive cold feeling, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब लगना, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिम्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम के सिम्टम्स हो सकते हैं. देन हेपेटोबिलियरी में और पैनक्रियाज में जॉन्डिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जॉन्डिस और पेन ड्यू टू गॉल स्टोन और एनीथिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी पाथवे विल कॉज जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन, और पैनक्रियाज के वजह से इंडाइजेशन और माल अब्जॉर्प्शन और इवन पेन, सीवियर पेन इन सिस्टम्स. तो ये सिस्टम हेपेटोबिलियरी पैनक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनके ये सिम्टम्स रहेंगे. देन कमिंग टू ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या क्या हो सकता है, तो ब्रेस्ट में आइदर सुपरफिशियली कोई लीजन हो सकता है, पेन हो सकता है, लंप हो सकता है, ग्रोथ लंप जो मे बी स्किन के ऊपर है या फिर स्किन के अंदर है, जो ऊपर से नहीं दिख रहा. निप्पल का कोई चेंज, निप्पल में कोई चेंज है, निप्पल रिट्रैक्टेड है या फिर उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, ये सारे ब्रेस्ट के कंप्लेंट होंगे. देन जेनिटेलिया, मेल फीमेल जेनिटेलिया, स्वेलिंग इन दी जेनिटेलिया, पेन, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, ये सारे मेल जेनिटेलिया के कंप्लेंट हो सकते हैं. या फिर अल्सर, वुंड in female genitalia, it could be again pain, difficulty in having intercourse, or painful, even associated with micturition or menstruation. तो ये फीमेल जेनिटेलिया के सिम्टोमेटोलॉजी होंगे. Then coming to skin and integumentary, it could be any lesion in the skin which is itching or causing pain, or loss of integumentary system like loss of hair or dryness. These can be symptoms in the skin and integumentary system. Then musculoskeletal, which could be associated with trauma, injury, pain, or unable to move due to fractures. That could be sign symptoms of musculoskeletal system. Then coming to systemic, which is most common and can be associated with any of the above systems, like fever, which is most common, one of the most common complaint which can be associated, fever which is known as systemic symptom, rise of body temperature, fever, बुखार आना. Then weight loss, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया. तो ये सारे वीकनेस, लेथार्जी, फटीग, थक जाना, ये सारे सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे. अब हिस्ट्री से हमको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सिस्टम्स या सिस्टम या फिर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है.
उसके बाद हम उसको और बेटर डिटेल में असेस करेंगे विद जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें हम उसका जो ये है जनरल फाइंडिंग जैसे कॉन्शियसनेस, उसके बाद हालचाल, देन उसका पैलर इक्ट्रस, क्लबिंग साइनोसिस, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडिमा, ये सब चेक करेंगे। वाइटल्स देखेंगे। वाइटल्स हमको उस पेशेंट की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, जिसमें पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी वाइटल्स में, जो हमको पेशेंट का स्टेबिलिटी बताता है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। वाइटल्स लो, पल्स रेट ज़्यादा, बीपी लो होने से, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होने से वाइटल्स अनस्टेबल बोले जाएंगे, पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में है, ये कंसिडर होगा। देन कमिंग टू सिस्टमिक एग्जामिनेशन और लोकल एग्जामिनेशन, जो हर सिस्टम का इंडिविजुअली चेक होगा डिटेल में। Then special test which could be clinical depending on the system involved, like indirect laryngoscopy, ophthalmoscopy, slit lamp examination or proctoscopy. So these are some of the special test or examination. So these will help us in giving a more justifiable or correct diagnosis after history. It will help us in going more towards the correct diagnosis. अब एक हिस्ट्री और क्लिनिकल पिक्चर जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग है उसके बेसिस पे हमने एक प्रोबेबल डायग्नोसिस, एक रफ डायग्नोसिस बना लिया है, जो हम आगे कंफर्म करेंगे इन्वेस्टिगेशंस करके। तो इन्वेस्टिगेशंस कॉमनली क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो ये जनरल है जो आपको आगे सब डिपार्टमेंट्स में काम आएंगे। सो ब्लड में हम देखेंगे सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन, टीसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, ये बेसिक पैरामीटर्स जो हमारे ब्लड के हैं उसको बताएगा। बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, उस वजह से कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कुछ देने की ज़रूरत है क्या ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर इन्फेक्शन है क्या काउंट्स बढ़ने की वजह से, या फिर ब्लड लॉस हो रहा है, प्लेटलेट फंक्शन नहीं कर रहे, लॉस हो रहे हैं। देन कमिंग टू लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर का क्या स्टेटस है, लिवर में क्या क्या है, लिवर फंक्शन में बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड लिवर एंजाइम्स ALT AST, ये आएंगे। दैट विल गिव अस अ पिक्चर फॉर jaundice. Then KFT, that is kidney function test, which will be urea and creatinine, which will be giving us the picture of the kidney function, जो कि डैमेज होके पेशेंट किडनी फेलियर या फिर अक्यूट किडनी इंजरी या फिर क्रोनिक किडनी इंजरी में जाता है, तो वो उसका अपने को यहाँ से पता चलेगा। देन द इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम, जो कि किडनी मैनेज करती है मेनली, वो उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होने से भी हार्ट एंड ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, तो इसका क्या स्टेटस है। देन कमिंग टू ब्लड शुगर, क्योंकि ये भी बढ़ जाने से प्रॉब्लम है, कम हो जाने से कॉन्शियसनेस अफेक्ट हो जाएगी, तो RBS, FBS, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, HbA1c, ये कॉमन ब्लड शुगर के टेस्ट हैं। देन द कोएगुलेशन प्रोफाइल, द PTINR एंड APTT, जो हमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे का फंक्शन देंगे एंड हेल्प करेंगे जज करने में कि पेशेंट कोएगुलोपैथी में तो नहीं है, उसके लिए कोई करेक्शन की ज़रूरत है क्या। देन पेशेंट इन्फेक्टिव कंडीशन से सफ़र तो नहीं कर रहा है, जो कोई क्रोनिक इन्फेक्टिव कंडीशन है जो कि ट्रांसमिसेबल है कॉन्टैक्ट से, तो टू बी केयरफुल फॉर आवर सेल्स एंड ऑल्सो फॉर अदर पेशेंट्स, ये चेक किया जाएगा। HIV, HBS, AG एंड HCV, HHH, जो पेशेंट को अदर डिजीजेस के लिए प्रोन बना देते हैं। ये 3 बीमारी, HIV, HCV, HBS, AG, H hepatitis B, hepatitis C and HIV AIDS. Then coming to the inflammatory markers like the CRP, ESR, जो कि इन्फेक्टिव क्रोनिक इन्फेक्टिव कंडीशन में बढ़ जाते हैं या फिर अक्यूट में भी बढ़ते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि अक्यूट फेज रिएक्टेंट है। देन प्रोटीन एल्ब्यूमिन, जो कि उसके न्यूट्रिशनल
स्टेटस के बारे में हमको एक रफ आइडिया देगा। देन अमाइलेज लाइपेज जो कि पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं, तो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में हमको डिरेंज मिलेंगे। देन स्पेशल टेस्ट लाइक कल्चर विच कैन बी डन फ्रॉम ब्लड टू गिव अस अ डायग्नोसिस टुवर्ड्स इन्फेक्शन। तो ये ब्लड के कॉमन टेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं और इससे आप चीज़ें पता कर सकते हैं। स्पेशल टेस्ट उसमें ऑटो इम्यून में टू फाइंड एंटीबॉडीज which could be from the microbiology like ELISA, PCR and all, वो स्पेशल टेस्ट हैं। Then coming to the other easy way of diagnosing, that is urine and stool, जो हम रूटीन एग्जामिनेशन जिसमें हम शुगर, प्रोटीन एंड सेल्स चेक करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोस्कोपी में एक ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं और इनका कल्चर करके कोई ग्रोथ है क्या ऑर्गेनिज्म का वो हमें पता चलेगा। तो यूरिन एंड स्टूल इम्पॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द सिम्टोमोटोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम या जीआई सिस्टम इन्वॉल्व है या नहीं। देन इफ रिक्वायर्ड CSF एग्जामिनेशन or marrow examination which is sometimes needed. Then coming to special which is non-invasive, that is imaging, which is very helpful for coming to a diagnosis, which could be through X-ray or ultrasound, USG, contrast, CT scan, computed tomography or magnetic resonance imaging, MRI, और special test like PET। तो ये टेस्ट डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है वी कैन यूज एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे जैसे डिजीज़ के बारे में समझेंगे तो और इजी होते जाएगा। देन वी हैव टू कंफर्म द डायग्नोसिस समटाइम्स विथ टिश्यू और हिस्टोपैथोलॉजी, जो हम सेल्स को एस्पिरेट करके, दैट इज FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की मदद से करेंगे या पैप्समियर की मदद से करेंगे इन गाइनी केसेस, या फिर टिश्यू को निकाल के, दैट इज बायोप्सी की मदद से हम करेंगे एंड देन इट विल हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर केस। एंड देन कमिंग टू स्कोपी विच इज द न्यू जनरेशन टेक्निक फॉर कंफर्मिंग थिंग्स। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे स्कोपीज हैं, जैसे एंडोस्कोपी विच कुड बी अपर GI एंडोस्कोपी, अपर गैस्ट्रोइसोफेजियल एंडोस्कोपी, देन कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जिस दी कोलॉन रेक्टम पार्ट विल चेक करेंगे, सिस्टोस्कोपी यूरिनरी पैसेज चेक करेंगे, ब्लैडर, यूरेट्रो रीनोस्कोपी यूरेटर्स एंड पेल्विस चेक करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी में हम यूट्रस चेक करेंगे, आर्थ्रोस्कोपी में जॉइंट स्पेस चेक करेंगे, थोरैकोस्कोपी में थोरैसिक कैविटी, लंग्स एंड मीडियास्टिनम चेक करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी से ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ये सारा लेवल्स असेस करेंगे, एंड एब्डोमिनल कैविटी लैप्रोस्कोपी से चेक करेंगे। सो दिस विल हेल्प अस इन डायग्नोसिंग। देन वी हैव सम स्पेशल टेस्ट which are sometimes used, like could be PET, some special fluoroscopic imaging. Then coming to treatment for any disease, first we have to start and understand that we have to at least start the symptomatic treatment so that the patient starts having some relief, which will include analgesics with help of the pain ladder, step ladder of pain management, analgesics. Then along with that, antipyretics, which are sometimes common, like the paracetamol, which is the low level of analgesic and antipyretic. Apart from that, antacids, antiflatulents, antiemetics, cough syrups, cough suppressants, and sometimes placebo also. Then definitive could be either medical or surgical.
In medical, if it's an infection, we go for antibiotics. If it's a uh, autoimmune condition or a immunity related condition, we go for immunosuppressant or immunomodulators like Crohn's disease, ulcerative colitis, and Graves' disease, where we use antithyroid drugs. Rather, where we use steroids to, not Graves' disease, I'm sorry, where conditions where we use steroids to treat, like the condition with severe inflammation like COVID, severe lung infection. Then coming to antihypertensives, if there is raised blood pressure, antidiabetics, if blood sugar is unable to be managed, then even hormones, if things are not getting managed, like insulin, anti-hormone like antithyroid in case of hyperthyroidism, cardiac drugs like cardiotonic digoxin or antiarrhythmics and so on drugs, then chemotherapy for severe malignancies like squamous cell carcinoma of anal canal, then fluids in case of dehydration becomes definitive, electrolytes in case of loss of electrolyte due to any of the cause, supplementation of electrolytes, and also uh, other supplements like vitamins, other minerals that can be needed. This was all about definitive medical treatments which could be needed. Then coming to surgical treatment, which could be through these common approaches, could be open, laparoscopic, robotic, and even endoscopic. So what are the treatments involved? Removal of organ like cholecystectomy or appendicectomy, explore and evacuate in case of contamination of the cavity like perforation peritonitis, then debride in case of cellulitis or gangrenes, amputation, remove and reconstruct or replace. So like in case of Whipple surgery, where we remove the head of pancreas and reconstruct the bowel with the biliary system and the pancreas, and sometimes even replace with like transplant, then repair or correct like defect in the abdominal wall, which could be repaired through hernia and putting a mesh, or correcting a congenital disorder like hypospadias being corrected by magpie. So then in case of trauma or injury, controlling bleeding, which becomes a definitive management for a case or an issue, trauma patient with bleeding, to control bleeding is surgical definitive management, and evacuation and stenting in case of any pathway obstruction like ureteric stone or CBD stone, evacuating with help of endoscopic instruments like the ERCP or URS, ureterorhinoscopy, and then stenting the pathway. So these are surgical treatments which are commonly employed for managing disease, and something among these mostly will be used for treatment. Then lastly, some miscellaneous ways of treating, that is radiotherapy, radiation for cancers, hormonal therapy, immunotherapy for cancers, then blood products depending on the scenario, could be congenital genetic defect like sickle cell, or could be trauma, then gene therapy, stem cell therapy for some genetic disease,
And lastly, palliation, where the patient is just being symptomatically managed because the condition is uncurable. So this was all about the basics of clinical medicine and surgery, which will be very helpful to understand and grasp things easily, quickly, and apply in a simpler and easier manner. So hope you have liked the video. So please share it with your friends and please subscribe my channel. And if you have any doubt, you can comment or let me know in my Telegram or Facebook or Insta page. And keep studying, keep growing, because great things take time, and never give up. And thank you for watching. See you in next video. And if you find that there is some mistake in whatever I have said, you can always correct me through adding a comment. I'd like to improve. So thank you. See you soon in next video. Thank you.